اور اس کے بعد گولی چلنے کی آواز آتی ہے. کسی سینئر کی کال تھی اور اس سینئر کو وہ غالباً وضاحتیں بھی دے رہے تھے کہ نہیں سر, جی سر, ایک گھرانہ پہلی تکلیف میں ہے, آپ چھچھوڑ پن دکھاتے ہوئے اس گھرانے کو مزید تکلیف میں مبتلا کر. ان کی یہ حرکتیں وائرل ہو جاتی ہیں جو یہ گھٹیا پن دکھاتے ہیں. کچھ لیڈر مسلے ٹٹو ہیں, کچھ چابی والے لٹو ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کسی کی بھی جان خطرے میں ہو اس بات کی نہ تو حمایت کی جا سکتی ہے نہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے, وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. ایس پی عدیل اکبر جنہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا, ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے. اس میڈیکل رپورٹ سے کیا پتا چلتا ہے, دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میڈیکل رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ عدیل اکبر کو ڈینگی پازیٹیو آیا تھا. 20 اکتوبر کو پولی کلینک سے انہوں نے چیک کروایا اور پازیٹیو آنے کے بعد 3 روز کی چھٹی کی درخواست دی تھی. 3 روز کی چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی. 23 اکتوبر کو دوبارہ ڈیوٹی جوائن کی اور پولیس ذرائع بتاتے ہیں کہ عدیل اکبر کا بیرون ملک یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو چکا تھا. دفتر خارجہ دستاویزات کی تصدیق کے لیے بھی گئے تھے. امکان اس بات کا ہے کہ عدیل اکبر سے اب میڈیکل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ حادثاتی طور پر ایس ایم جی چل گئی ہو, وہ اپنی زندگی کا خاتمہ شاید نہ کرنا چاہتے ہوں. اور جو پولیس ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیول کے آفیسرز, انہیں یہ جو ہیوی ویپن ہے اس کی زیادہ ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہوتی, اور ان کی جب موت ہوئی تو گاڑی میں ان کا آپریٹر موجود تھا اور ڈرائیور, یہ دونوں حراست میں ہیں, اور جو گاڑی میں بات چیت ہوئی اس سے متعلق تفتیش جاری ہے. پروموشن کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ملنے جا رہے تھے. 2 بار بورڈ ہوا, دونوں بار ان کی پروموشن نہیں ہوئی تھی. 2017 میں جب انہوں نے سی ایس ایس کیا تھا تو پاکستان بھر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسری پوزیشن ان کی آئی تھی. عدیل اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنے آپریٹر سے گن لیتے ہیں اور گن لینے کے بعد وہ اس کے کہتے ہیں کہ دکھاؤ ذرا. وہ میگزین نکال کے ویپن دیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس میں کتنی گولیاں ہوتی ہیں, میگزین دو مجھے. وہ میگزین دیتا ہے, وہ کہتا ہے 50 گولیاں ہوتی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں چلتی کیسے ہے, لیتے ہیں اور اس کے بعد گولی چلنے کی آواز آتی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب سے گولی چل گئی, صاحب گولی شاید چلانا نہیں چاہتے تھے. اور یہ ان کے اس بندے کا کہنا ہے کہ میں اور ڈرائیور گاڑی کی اگلی نشست پر موجود تھے. میگزین عدیل اکبر کے حوالے کرنے کے بعد انہوں نے میگزین گن میں لوڈ کیا. چند لمحوں بعد اچانک فائر کی آواز آئی. عدیل اکبر کے ماتھے پر فائر لگا جو سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گیا. ان کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی. فوری طور پر کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ ایس پی صاحب سے فائر ہو گیا. ڈرائیور نے گاڑی فوراً پمس کی طرف روانہ کر دی. آئی جی علی ناصر رضوی کہتے ہیں کہ عدیل اکبر کا آپریٹر اور گن مین حراست میں ہیں. ان کا بیرون ملک اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ تھا. ان کو شولڈر پروموشن دے کر ایس پی لگایا گیا تھا. عدیل اکبر کے بھائی حسن بھی عدیل سے ملنے آئے تھے. جس روز گزرے اس سے ایک دن پہلے عدیل اکبر کا بھائی سارا دن ان کے ساتھ رہا, اور عدیل اکبر جہاں جہاں گئے جو فون کالز کی وہ سارا ڈیٹا آئی جی بتاتے ہیں کہ چیک کیا جا رہا ہے. ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ تدفین آبائی گاؤں ماڑی ٹھاکرہ میں کی گئی, اور آئی جی اسلام آباد سی پی او گجرانوالا اور دیگر نے شرکت کی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کال کس کی تھی. جو ڈرائیور آپریٹر ہیں ان سے تفتیش ہو رہی ہے کہ گفتگو کیا تھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ دوسرے اینڈ پر جو گفتگو تھی وہ گاڑی میں موجود افراد نہیں سن رہے تھے. عدیل اکبر کی باتیں ان کو پتہ چل رہی تھی. بعض سورسز یہ بتاتے ہیں کہ کسی سینئر کی کال تھی اور اس سینئر کو وہ غالباً وضاحتیں بھی دے رہے تھے کہ نہیں سر, جی سر, ایسے نہیں سر, یہ گفتگو ہوئی ہے لیکن یہ مبینہ ہے, یہ سورسز کے مطابق ہے. یہ عدیل اکبر کا کیس ہے. اور ایک ننھی سی بچی, ریسنٹلی شادی ہوئی تھی, اس نوجوان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں, آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں نون لیگ نے اس معاملے پر کیا کیا ہے, کس طرح کے لوگ بھرتی کیے ہیں. نجم ولی خان سرکاری ٹی وی میں بھرتی کیے گئے صحافی ہیں. نجم ولی خان نے کیا کیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, یہ ضرور دیکھنے کی چیز ہے. یہ شخص جو ہے نجم ولی خان, اس سے پہلے یہ صنم جاوید کے معاملے پر انتہائی گھٹیا باتیں کر چکا ہے.
किसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्रॉप करके डाली, जूम इन करके, कि सनम जावेद रिहा हुई तो उनके कंधे पर एक हाथ है और वो उनको तसल्ली दे रहा है, थपक रहा है। तो किसी ने कहा कि ये वकील साहब का हाथ है, वकील साहब कोई छिछोरी हरकत कर रहे हैं। उसके बाद नजम वली खान ने उसको पहले इंडोर्स किया, फिर बाद में पता चला कि नहीं ये तो सनम के वालिद हैं, किसी ने क्रॉप करके घटियापन दिखाया था। तो ये इतना बुरा है कि ये भी कहने लगा कि बाप अपनी बेटी को ऐसे छूना कैसे वो कर सकता, ये भी नामुनासिब है। ये इस तरह के लोग हैं। तो नजम वली खान ने क्या किया अब मैं आपको दिखा देता हूं। इसने अदील अकबर की तस्वीर लगाई और उनके कुछ पैगामात लगाए जो सोशल मीडिया पर वायरल पैगामात थे उनके ट्विटर अकाउंट के, और कहा आप पुलिस में एसपी हो, इस्लामाबाद में तैनात हो और आप खुदकुशी कर लें, आपसे बड़ा बुज़दिल और अहमक कौन है। मैंने ना कभी किसी कातिल को बहादुर और समझदार समझा है, ना किसी खुदकुशी करने वाले को। ये बुज़दिल और अहमक लोग होते हैं जो ना अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और ना अपने मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे तो हैरत है कि इतना बुज़दिल और ना समझ पुलिस में कैसे चला गया। फिर वो कहते हैं मुझे इस पर नहीं, इसके माँ बाप और अजीज़ों पर तरस आ रहा है कि इसने उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत और उम्मीद ख़त्म कर दी। मर्द की ज़िंदगी पर उसके ख़ानदान का हक़ होता है। इसने अपने वालिदैन की मोहब्बत, मेहनत, सरमाया ज़ाया नहीं किया बल्कि रियासत के वसाइल भी ज़ाया किए। ज़िंदगी कीमती, इसकी कदर करें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए इस जसों को हीरो मत बनाएं। अदील अकबर की जो इन्होंने तस्वीरें लगाई उसमें पैगाम है, हम फ़कीरों को कभी रास ना आया वरना हमने पाया था मुक़द्दर तो सिकंदर जैसा। अदील अकबर अपने उन पैगामात में मज़ीद लिखते हैं, डर लगदा है शाकिर बारिशां तो असां आर्जी नक्श दीवाना दे। ये उन्होंने लिखा, यानी शिकवा नजर आ रहा था हालात का, अपनी जिंदगी का, अपने मुकद्दर का शिकवा नजर आ रहा था। अब ये सब लिखकर जो इस शख्स ने हरकत की ना, मुझे इसके वालिदैन पे, इसके अजीजों पे तरस आ रहा है। एक घराना पहली तकलीफ में है, आप छिछोरपन दिखाते हुए उस घराने को मजीद तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं। ऐसे नमूने अता तारड़ साहब ने सरकारी टीवी पे भर्ती क्यों हैं? एक ये है, एक वो जो अभी कुछ दिन पहले लगा हुआ था, हमारा सिंधु हमारा सिंधु, वो। फिर उसके बाद दीगर नमूने ने उन्हें सरकारी टीवी पे भर्ती किए हुए हैं। घटिया तरीन, लुच्चर तरीन गुफ्तगू कौमियतों के बारे में, खवातीन के बारे में, सियासतदानों के बारे में लुच्चर तरीन लोग भर्ती किए हुए हैं। और ये लोग सोशल मीडिया पर आकर मुंह खोलते, गंद उगलते, गलीज तरीन गुफ्तगू करते। और इन लोगों को असेंबली में खड़े होकर अता तारड़ साहब ने कहा कि ये बड़े शानदार लोग, मशहूर लोग, मकबूल लोग, इनकी रेटिंग बढ़िया है। कोई कख नहीं देखता इन लोगों को, कख नहीं देखता कोई इन लोगों को। इनकी ये हरकतें वायरल हो जाती हैं जो ये घटियापन दिखाते हैं, और उस घटियापन पे इनको समझते हैं कि ये वायरल लोग हैं, इनकी चीजें वायरल होती हैं। इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक। और ये क्यों किया जाता है? मेरी राय में तो बाकायदा इशारा होता है कि इस खुदकुशी के नतीजे में कुछ लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं। बस शुरू हो जाओ, कहीं का कहीं कुछ ना कुछ गंद मारो, तवज्जो हटाओ, और जिन लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं उन पर उंगलियां उठने से बचाओ। ये जरूर करना है तुम्हें। ये मुझे तो लगता है, मेरे पास कोई व्हाट्सएप इनको आया हुआ पैगाम नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये इशारों पे काम करने वाले लोग होते हैं। पूरे मामले में सब पानी गदला कर दो हाथ मार के और उसके बाद गंद मचाओ, ये ऐसे लोग होते हैं। तो इसलिए ये काम करते हैं। अब मजीद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सुहेल आफरीदी के मरकज से मुतालबात की बात हो रही है। 6 अदद मुतालबात हैं सुहेल आफरीदी के मरकज से। इन 6 मुतालबात में उन तमाम लोगों के लिए जो कह रहे थे ना कि सुहेल आफरीदी ना तजुर्बेकार है, इश्क इमरान है, सूबे के मामलात की तो बात ही नहीं करता। अगर आप देखें तो सुहेल आफरीदी को सूबे के मामलात पर भी किस कदर फिक्र लाहक है और मरकज से सूबे का हक लेने के लिए वो कैसे खड़े हुए हैं, आपको नजर आएगा सुहेल आफरीदी ने क्या कहा है। मुतालबा नंबर 1, वो कहते हैं ये जिरगा किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन बंद किए जाएं। नंबर 2, अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसका हिसाब किताब होगा। इमरान खान साहब ने भी कहा था, गंडापुर साहब ने बयान तो दिया था कि FIR करवाएंगे, ये जो काटलंग में ड्रोन हमला हुआ था। नंबर 3, ये जिरगा कबायली अजला से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा करता है। जम किया है तो जम करते वक्त कुछ वादे किए गए थे। नंबर 4, ये जिरगा मर्ज किए गए अजला के सालाना 100 रुपए के हिसाब से 550 अरब रुपए बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करता है। और नंबर 5, ये जिरगा नेट हाइडल प्रॉफिट के तहत, ये जो पानी से बिजली बनती है,
2200 अरब रुपए के बकाया जात की अदायगी का मुतालबा करता है। नंबर 6, ये जरगा NFC मीटिंग का मुतालबा और उस मद में खैबर पख्तूनख्वा के 350 अरब रुपए की अदायगी का मुतालबा करता है। सुहेल आफरीदी इज दिस मच सीरियस। जब खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के मामलात की बात हो, वो कहते हैं हक दो हमारा। उन्होंने तो अपने खिताब में साडा हक ऐथे रख ये बात भी की है, लोगों से वादा भी किया है, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, करक जाएंगे, करक में जलसा करेंगे। तो सुहेल आफरीदी मीन्स बिजनेस और मरकज से वो बात करना चाहते हैं। जो लोग ये बात करते ना कि इजलास में नहीं आए और गालिबन एक बलूचिस्तान वर्कशॉप में बुलाया गया, वहां नहीं आए, तो इनके साथ क्या किया गया? इनको सियासी मुखालिफिन ने, तालिबान वाला है, स्मगलर है, दहशतगर्दों का साथी है, गैर सियासी मुखालिफिन ने हमें कबूल नहीं है, हम होने नहीं देंगे, हो ही नहीं सकता कि ये आ जाए, नंबर आपके पास है नहीं, और आप दावे कर रहे थे। जब आपने उस शख्स को आने से पहले तू वजीर आला बन के दिखा ये कहा था, तो किस मुंह से बुला रहे हैं कि वजीर आला साहब आइए, इजलास में आइए, आपके सूबे के मामलात डिस्कस करने। आप तो उसको कह रहे थे तू वजीर आला बन के दिखा, अब उसने बन के दिखाया वजीर आला, तो आपको तकलीफ हो रही है। तो ये सुहेल आफरीदी का मामला है। सुहेल आफरीदी के बाद मैं मरियम नवाज शरीफ के मामले की बात करना चाहूंगा। मरियम नवाज शरीफ के मामले में हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर, इन्होंने खबर दी है कि मरियम नवाज शरीफ की और अहम शख्सियात की जो सिक्योरिटी स्क्रूटनी है उस पर काम हो रहा है। ये पहले भी बार बार किया गया मुख्तलिफ मौके पर। होता यह कि जब कोई खुदा न खास्ता वाकया हो जाए तो इनकी जो सिक्योरिटी पर मौजूद लोग होते हैं VVIPs की, इनको बाकायदा तौर पर दोबारा स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजारा जाता है कि इनके जहनी रुझानात क्या हैं, मजहबी रुझानात क्या हैं, गुस्से पर कंट्रोल कैसा है, इनके मिलने जुलने वाले कौन हैं, इनके ख़ानदान के मामलात क्या हैं, और तो और इनका सोशल मीडिया क्या बताता है, ये क्या पोस्ट करते हैं, क्या लाइक करते हैं, किन चीज़ों पर रिएक्शन देते हैं, तो और क्या देखते हैं सोशल मीडिया पर, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ में इन लोगों की पूरी स्क्रूटनी करते हुए ख़ानदान के लोग, बहन भाई, बेगम के रिश्तेदार वगैरह सबको देखा जाता है कि इन पर किसी चीज़ का अगर इन्फ्लुएंस हो तो उसको भी चेक किया जाए। तो सानह मुरीद के बाद स्क्रूटनी के अमल से गुजारा जा रहा है। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी की भी जान खतरे में हो, इस बात की ना तो हिमायत की जा सकती है, ना इस पर खुशी का इजहार किया जा सकता है। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारियां अपने ओहदे पर होते हुए अंजाम दे रहा है, और उसकी जान कोई खतरे में डाल दे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर खुशी का इजहार किया जाए और जिसकी हिमायत की जाए। तमाम लोगों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, चाहे वो वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो, कोई चीफ सेक्रेटरी हो, सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है। तो इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनकी भी जान की हिफाजत की जानी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो मामलात हैं वो मामलात कानूनी तौर पर हों और कानून के तमाम तकाजे पूरे करने के बाद हों, ये बात साफ तौर पर की जानी चाहिए। आखिरी चीज़, फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो किया गया है, आप देखिए इस वीडियो में आप देख रहे हैं इसहाक डार साहब, साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, ये फजलुर रहमान साहब के घर गए। वहाँ मशहूर मज़ाहिया शायर हैं सलमान गिलानी साहब, उनको बुला लिया गया और सलमान गिलानी साहब ने उनको बिठाकर वहाँ अपना कलाम सुनाया, तरन्नुम के साथ गुनगुनाते हुए सुनाया अपना मोबाइल उठा के। और उसके बाद मैं देख रहा था इसहाक डार साहब ऐसे बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ऐसे बैठे हुए हैं, साद रफ़ीक साहब एक पेपर पकड़ के अपने कोट की जेब में यहाँ रख रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं, मोबाइल पे लगे कोई पेपर देख रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ऐसे बैठे हुए हैं, इंतहाई गम गुस्सा इनके चेहरों पर नज़र आ रहा है, बेबसी है कि अब हम मेहमान हैं और एक शख्स कलाम सुना रहा है, क्या करें, कलाम क्या है। इन सबको बिठा के सुनवाया क्या गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे, और गफूर हदी साहब बाछें खिली हुई खुश होकर कलाम सुन रहे थे। कलाम क्या था, क्या बोले किसके ईमा पर यह खेल रचाया जाता है, क्या कहिए किसके कहने पर मैंडेट चुराया जाता है। फिर आगे वो बताते हैं शफाफ इलेक्शन ए लोगो ऐसे भी कराया जाता है, कुछ लोटे तोड़े जाते हैं, कुछ लोटे जोड़े जाते हैं, जो बात ना माने साहिब की उसको हरवाया जाता है। फिर वो कहते हैं हम एटमी ताकत हैं यारो, तो हमको बांध के रखना है। ये हुक्मरानों की सामने हो रही थी। हम पागल हैं, हम जाहिल हैं, ये शोर मचाया जाता है। कुछ लीडर मिसले टट्टू हैं, कुछ चाबी वाले लट्टू हैं। कुछ लीडर मिसले टट्टू हैं, कुछ चाबी वाले लट्टू हैं। टट्टू नचवाए जाते हैं,
لٹو کو گھمایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد سلمان گیلانی صاحب جو ہیں وہ مزید سناتے ہیں, پولنگ کے نتیجے میں اپنی مرضی کا نہ جب بندہ جیتے, ڈبوں کو اٹھا کر ووٹوں کو نالے میں بہایا جاتا ہے. یہ انہوں نے کلام سنایا. اور نون لیگ کے لوگوں کو جن پر الزام ہے کہ وہ چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں, یعنی نواز شریف صاحب کا نتیجہ 3:30 بجے بدل دیا گیا, بندے کو تھپڑ مار کے نیا بندہ لا کے, زبیر صاحب بتاتے ہیں نا, نیا بندہ لا کے نتیجہ جاری کروایا گیا. اس طرح کا الیکشن ہوا اور یہ مولانا صاحب نے گھر پہ بٹھا کے مہمانوں کو وہاں پہ سنوایا اور اس کی ویڈیو بنی اور ویڈیو اب ہو گئی ہے وائرل. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.